Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Idinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री गौरनीता की जय विश्व गुरु शील प्रभुपाद की जय Hare Krishna. So, welcome to this new series, Swagatam Krishna series. We are doing this series on account of the upcoming Janmashtami. जो आने वाला जन्माष्टमी है उसकी उपलक्ष्य में इस श्रृंखला को हमने प्रारंभ किया है जिसका नाम है स्वागतम कृष्णा सीरीज। तो आज हम पहला सत्र स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन आवर फर्स्ट सेशन ऑफ दिस स्वागतम कृष्णा series. The chapter 1 from Srila Prabhupada's Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the most authentic story writing about the pastime of Sri Krishna. So, हम प्रारंभ करने वाले हैं पहले अध्याय से द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्णा का अवतरण और किस परिस्थिति में कृष्णा ने आश्वासन दिया भक्तों को कि वो अवतार लेके स्वयं आने वाले हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कृष्णा gave assurances to devotees that he is going to come himself this time and perform his various leelas and give protection to the devotees. Chapter 1, Advent of Lord Shri Krishna, authored by His Divine Grace Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Once the world was overburdened by the unnecessary defense force of different kings. तो द्वापर युग में और उससे थोड़ा पहले कुछ ऐसे समय था जब अनेक राजा तो भूमि का भार बन चुके थे। क्यों? Why they were burden on Mother Earth? Because they were actually demons who were posing themselves as royal order. क्योंकि वो असल में आसुरी स्वभाव के व्यक्ति थे। They were people with demonic tendencies, and these people assumed the positions of kings. At that time, the whole world became perturbed. पूरा विश्व उस समय उपद्रव में था. And the predominating deity of this earth, known as Bhumi Devi, went to see Lord Brahma. तो उस समय पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवी भूमि देवी, पृथ्वी माता, ब्रह्मदेव का संदर्शन करने उनके पास चली गई। क्यों गई थी? To tell of her calamities due to the demonic kings. Why she had gone? To express her burdened feelings to Lord Brahma. तो अपने भूभार की परिस्थिति को ब्रह्मा जी के समक्ष बोलने के लिए वो गई थी। और वहां जाने के लिए भूमि देवी ने क्या किया? What did Bhumi Devi do? Bhumi assumed the shape of a cow. तो भूमि देवी गाय के स्वरूप में ब्रह्मा जी के पास गई। And she presented herself before Lord Brahma with tears in her eyes. ब्रह्मा के सामने वो खड़े होके अश्रु बहा रही थी। She was bereaved and was weeping to invoke the Lord's compassion. तो दुखी थी और भगवान ब्रह्मा की अनुकंपा पाने के लिए
गाय के रूप में जाके उनके सामने खड़े होके रोने लगी. She related the calamitous position of the earth, and after hearing this, Lord Brahma became much aggrieved. तो अपना दुख को ब्रह्मा के सामने उन्होंने व्यक्त किया. कौन? पृथ्वी देवी, भूमि देवी. और ब्रह्मा जी को भी बहुत ही दुख हुआ ये बातें सुन के. एंड ही एट वंस स्टार्टेड फॉर द ओशन ऑफ मिल्क. तो तुरंत ब्रह्मदेव क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करने लगे. क्यों गए वो वहां पे? क्योंकि वहां पे देर लॉर्ड विष्णु रिसाइड्स. क्योंकि वहां पे भगवान विष्णु का निवास है. Lord Brahma was accompanied by all the demigods headed by Lord Shiva, and Bhumi also followed. तो ब्रह्मा अकेले नहीं गए, उनके पीछे पीछे सारे देवता गण चले गए. भगवान शिव भी उनके साथ थे, और भूमि देवी भी जो गाय के स्वरूप में थी वो भी उनके पीछे पीछे क्षीर सागर की ओर चली गई. Arriving on the shore of the ocean milk, Lord Brahma began to pacify Lord Vishnu. तो क्षीर सागर के तट के पास आने के बाद ब्रह्मदेव भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए स्तुति करने लगे. So Lord Vishnu had formerly saved the earthly planet by assuming the transcendental form of a boar. तो इससे पहले भगवान विष्णु पृथ्वी का पृथ्वी का रक्षा करने के लिए वो वराह रूप में आए थे. यही ब्रह्मदेव जानते थे. दिस लॉर्ड ब्रह्मा न्यू. In the Vedic mantras, there is a particular type of prayer called Purusha Sukta. वेद ग्रंथों में, वेद का प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना है जिसका नाम है पुरुष सूक्ता. Generally, the demigods offer their obeisances unto Vishnu, the supreme personality of Godhead, by chanting Purusha Sukta. तो तो प्रतिनित्य देवता विष्णु का संतुष्टि के लिए उनका अ, आराधना करते हुए पुरुष सूक्ता गाते हैं. It is understood herein that the predominating deity of every planet can see the supreme lord of this universe. So that is Brahma, whenever there is some disturbance on this planet. तो हर लोक का जो अधिष्ठात्री देवता या देवी है वो ब्रह्म देव का संदर्शन कर सकते हैं. तो जब भी कोई उपद्रव है उसको व्यक्त करने के लिए वो ब्रह्म के पास जा सकते हैं. एंड ब्रह्मा कैन अप्रोच लॉर्ड विष्णु. और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु का संदर्शन कर सकते हैं. लेकिन वो कैसे संदर्शन करेंगे ब्रह्मा विष्णु का? हाउ डज ही मीट लॉर्ड विष्णु? हाउ डज ही अप्रोच लॉर्ड विष्णु? He cannot approach him by seeing him directly, but by standing on the ocean of the shore of the ocean of milk. तो सीधा सीधा ब्रह्मदेव भी विष्णु का दर्शन नहीं कर सकते. ज्यादा से ज्यादा वो क्षीर सागर के तट के पास जाके रह सकते हैं और प्रार्थना करके प्रतीक्षा कर सकते हैं. यदि इच्छा हो भगवान विष्णु उनको दर्शन दे सकते हैं. If the Lord so desires, Vishnu so desires, then he may grant darshan to Lord Brahma. May not also grant. There is a planet within this universe called Shweta Dvipa. इस विश्व में, जो जिस विश्व में हम हैं, जिसका ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा है, अनेक अनेक कोटि कोटि विश्व है, और सारे विश्व में एक एक ब्रह्मा है जो उनका सृष्टि करता है. हमारे विश्व का सृष्टि करता है चतुर्मुखा ब्रह्मा, जो सबसे शक्ति सबसे कम शक्ति वाले ब्रह्मा है. इज द ब्रह्मा ऑफ हैविंग द लोएस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ अमंग द ब्रह्मास. So there are many other universes which are far greater than the universe that we stay in.
And the Brahma there, so here a Chaturmukha Brahma is required, that much intelligence is required. There are Brahma having 10 heads, Brahma having 100 heads, Brahma having a million heads and more. तो ऐसे वैसे विश्व है जिसमें जिसका ब्रह्मा सृष्टि करता हमारे विश्व के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा काफी है। लेकिन अनेक विश्व है जिसमें 10 सर वाले ब्रह्मा है, 100 सर वाले ब्रह्मा है, 1000 सर वाले ब्रह्मा है, कोटि सर वाले ब्रह्मा है, जैसे कि वो विश्व है। तो So, Shweta Dvipa on that in this on the planet Shweta Dvipa in this universe there is ocean of milk. तो इस विश्व में जो श्वेत द्वीप है वहां पे महासागर है, क्षीर महासागर। पृथ्वी में महासागर कैसा है? क्षीर सागर नहीं होता है, not ocean of milk, ocean of salt. Our great oceans are made up of salt. So they are ocean of salt. But here we come to know it is understood from various Vedic literatures that just as there is an ocean of salt water on this planet, there are various kinds of oceans on other planets. तो जैसे कि हमारे पृथ्वी पे नमक वाला सागर है, अनेक अनेक ऐसे लोक हैं जिसमें सागर अनेक तरीके के हैं। जैसे कि समवेयर देयर इज एन ओशन ऑफ मिल्क, तो कहीं पे क्षीर सागर है श्वेत द्वीप में, और समवेयर देयर इज एन ओशन ऑफ ऑयल, कहीं पे तेल का सागर है। हमारे पृथ्वी पे आजकल युद्ध हो रहा है तेल की वजह से, लेकिन ऐसा तेल का भंडार सागर कोई और लोक में है, कोई और क्या बोलते हैं प्लैनेट में है। और एंड समवेयर देर इज एन ओशन ऑफ लिकर, तो यहाँ क्या छोटे मोटे ब्रांडी वाइन शॉप्स हैं। सागर, मदिरा का सागर कोई विश्व में कोई प्लैनेट में है, तो कोई लोक में है। और एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, ऐसे अनेक तरीके का सागर है अलग अलग ग्रहों पे। The Purusha Sukta is the standard prayer which the demigods recite to appease the supreme personality of Godhead. और पुरुष सूक्ता आदर्श प्रार्थना है जिसको देवता लोग भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए अ, उसका उपयोग करते हैं। और क्षीर सागर पे जो विष्णु है श्वेत द्वीप में, उनका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो विष्णु का भी अनेक 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 तरीके के विष्णु हैं। देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विष्णु, एंड इट इज नॉट जस्ट वन विष्णु, देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ विष्णु। एंड देयर इज महाविष्णु, कारणोदकशाय विष्णु, देयर इज गर्भोदकशाय विष्णु, देयर इज क्षीरोदकशाय विष्णु जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। एंड लाइक दिस देयर आर कोटि कोटि वैकुंठ प्लैनेट्स। तो आध्यात्मिक जगत में ऑन द स्पिरिचुअल realm there are crores and crores of Vaikuntha planets, and each Vaikuntha planet is occupied by one type of Vishnu. So there are different types of Vishnus. विष्णु का एक ही रूप नहीं है, अनेक अनेक उनका रूप है। और उन सब का स्रोत कौन है, उन सब का आधार शक्ति कौन है, हु इज द सोर्स एंड द प्रिंसिपल एनर्जी सप्लायर ऑफ ऑल ऑफ दीज विष्णुस, दिस लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। सो Kshirodakashai Vishnu is the form of Supreme Personality of Godhead through whom all the incarnations within this universe appear. तो क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? जिसके माध्यम से भगवान के सारे अवतार इस पृथ्वी पे आते हैं। कहाँ से आते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से। क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ पे है? श्वेत द्वीप पे। श्वेत द्वीप पे कौन से सागर है? क्षीर महासागर। So all incarnations that come onto this earth and this universe come through the planet of Shweta Dvipa through the medium of Kshirodakashayi Vishnu, who is residing on the ocean of
milk. After all, the demigods offered the Purusha Sukta prayer to the Supreme Person of Godhead. They apparently heard no response. तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर लिया, पुरुष सूक्ता उन्होंने स्तुति किया, देवताओं ने पुरुष सूक्ता का स्तुति किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया. तत्पश्चात क्या हुआ? What happened next? Then Lord Brahma personally sat in meditation and there was a message transmission from Lord Vishnu to Brahma. तो इसके बाद क्योंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है, ब्रह्मा जी तपस्या पे बैठ गए भगवान विष्णु की ऊपर ध्यान करते हुए. विष्णु जी प्रसन्न होके उनको एक संदेश भेजा. सो देयर वाज अ मैसेज दैट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हूम, फ्रॉम लॉर्ड विष्णु टू हूम, टू ब्रह्मदेवा. एंड ब्रह्मदेवा इन टर्न ट्रांसमिटेड दिस मैसेज टू द डेमिगॉड्स. तो जो उनको मिला था मैसेज, तो वही मैसेज उन्होंने, ब्रह्मदेव ने सारे देवताओं को वो भी बता दिया था. दैट इज द सिस्टम ऑफ रिसीविंग वैदिक नॉलेज. तो वेद ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? परंपरा के अनुगत. तो गुरु गुरु शिष्य को बोलते हैं, और शिष्य जब गुरु बनते हैं वो अपने शिष्य को बोलते हैं. तो पहला गुरु कौन है? कृष्णा, विष्णु. और उनका पहला शिष्य कौन है हमारे परंपरा में? ब्रह्मा जी. तो ब्रह्मा जी को सारे संदेश ब्रह्मा जी को मिलते हैं. और इससे पहले ब्रह्मा जी को पूरा वेद वेद ज्ञान का प्रसारण हुआ था प्रसाद रूप में. कृष्णा ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था. तो the Vedic knowledge is first received by Brahma from the Supreme Personality of Godhead. तो वेद ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के द्वारा प्रसारण होता है प्रसाद के रूप में. और कैसे होता है? थ्रू द मीडियम ऑफ द हार्ट. तो हृदय के माध्यम से ब्रह्मा जी को विष्णु जी संदेश भेजते हैं और वेद ज्ञान प्रकाश करते हैं. एज स्टेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम. तो भागवतम का पहले ही स्कंद का पहली अध्याय का पहले ही श्लोक में ये बात कहा गया है. दिस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन कैंटो 1 चैप्टर 1 एंड द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, वेयर द वर्ड्स आर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये. तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा यहाँ का इस श्लोक में ब्रह्मा का मतलब है सारे वेद ज्ञान. तो सारे वेद ज्ञान हृदय, कौन सी माध्यम से? थ्रू द हार्ट, बाय द वाया मीडिया ऑफ हार्ट, हृदय के माध्यम से. यह आदि कवि प्रदान किया गया था. किसको? आदि कवि को. कौन है आदि कवि? ब्रह्मा. ब्रह्मा को आदि कवि बोलते हैं. तो किसने प्रसारण किया था? कृष्णा, भगवान विष्णु ने प्रसारण किया था. The transcendental knowledge of the Vedas was transmitted. Hare Krishna. Sorry. The transcendental knowledge of the Vedas was uh, transmitted to Lord Brahma through the heart. Here also, in the same way only, Brahma could understand the message transmitted by Lord Vishnu through the medium of heart. तो पहले सृष्टि का प्रारंभ में भगवान विष्णु ने सारा वेद ज्ञान ब्रह्मा को प्रदान किया था प्रसाद के रूप में. अभी भी वो ब्रह्मा जी को संदेश भेजते हैं. कैसे? हृदय के माध्यम से. तो आगे बढ़ते हैं. एंड ब्रह्मा ब्रॉडकास्टेड टू डेमिगॉड्स फॉर देयर इमीडिएट एक्शन. संदेश ब्रह्मा जी के लिए भी था और सारे देवताओं के लिए था. तो संदेश उन्होंने, ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी ये संदेश पहुंचाया. क्या संदेश था? क्योंकि उनको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना था. द मैसेज वाज दिस: द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड would appear on earth very soon along with his supreme powerful potencies. तो भगवान कृष्णा स्वयं अब अवतरित होके आने वाले हैं पृथ्वी लोक में. तो और उनके साथ उनके सारे शक्तियां भी आएंगी, अकेले नहीं आएंगे वो. And as long as he remained on earth planet, he would execute his mission of
annihilating the demons, establishing the devotees, and the demigod should also remain there to assist him. तो भगवान का अवतरण क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्यों करना चाहते हैं ये दोनों? क्यों साधु को रक्षा देना चाहते हैं? क्यों दुष्कृतिनाओं को वो संहार करना चाहते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापन करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में विष्णु अलग अलग अवतार में आते हैं। इस बार कृष्णा, इस ये द्वापर युग में कृष्णा ने निर्धार किया कि स्वयं वो आएंगे अपने पूर्ण सारे कला के साथ, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ आएंगे और सारे शक्तियों के साथ वो आएंगे। तो वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट। द इमीडिएट द्वापर युगा विच पास्ट, that is 5,000 years ago, Lord Shri Krishna was here on this earth performing on this pastimes. And this particular uh, transmission is coming from that very land where Krishna was born and performed his major pastimes in the Vrajabhumi. तो हम सब इस प्रसारण सुन रहे, वृंदावन से प्रसारण हो रहा है। वही वृंदावन जहाँ भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्णा अपने सारे कलाओं के साथ, षड ऐश्वर्यों के साथ, संपूर्ण स्वयं रूप में वो आए थे। As himself he had come. Further we will go. So what was the message given? Lord is going to come. So therefore all of you demigods also should take birth in different places on earth where the Lord is going to perform his pastimes. जहां जहां भी भगवान अपना लीला करने वाले हैं, वहां वहां उनको अलग अलग परिवारों में जन्म लेना था। कैसे परिवारों में? ऐसे ऐसे वैसे परिवारों में नहीं। We'll see. So they should all take immediate birth in the family of Yadu dynasty. यदु कुल में उनको जन्म लेना है, और wherein the Lord would also appear in due course of time, जहां भगवान भी कुछ समय के बाद आने वाले हैं। The Supreme Personality of Godhead himself, Krishna, would personally appear as the son of Vasudeva. भगवान कृष्णा स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में आने वाले हैं यदुकुल में। Before his appearance, all the demigods, along with their wives, should appear in different pious families in the world. तो यदुकुल में भी प्रमुख प्रमुख देवता और उनके पत्नी के साथ उन्होंने जन्म लिया, और विश्व के अनेक अनेक जगहों पे भी अलग अलग देवता जाके जन्म लिए। कौन से कैसे परिवारों में? पुण्यशाली परिवारों में, पायस फैमिलीज। गहरे गहरे फैमिलीज के फैमिलीज में नहीं। सो why did they all come? To assist the Lord in executing his mission, ताकि भगवान की लीला में वो भाग ले सके और उनकी सहायता कर सके। वैसे भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। लॉर्ड डज नॉट रिक्वायर एनीबॉडीज हेल्प, बट लॉर्ड हैज अलाउड द डिवोटीज, डेमीगॉड्स टू डू सेवा फॉर हिम। जैसे कि लंका का जो ब्रिज बना, उसके लिए भगवान राम को सेतु की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेके हनुमान जी लांग गए यहाँ भारत से लंका को, भगवान की नाम लेने से। वैसे भगवान को ब्रिज की जरूरत पड़ेगा, सेतु की जरूरत पड़ेगा। तो जिसके नाम लेके पत्थर उस पानी में तैर रहा है, वैसे भगवान को सेतु की जरूरत है या फिर सर्वेंट्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं आपको सेवा की जरूरत है, इसलिए आपको ये सेतु बनाने दे रहा हूं, वरना रावण को मारने के लिए आप सबकी जरूरत नहीं है मुझे। आई डोंट रिक्वायर यू ऑल टू किल रावण। आई एम इन योर हार्ट, दैट वे आई एम इन
सेम वे आई मीन रावणास हार्ट ऑल्सो, जैसे कि मैं आपके हृदय में हूँ, मैं रावण के हृदय में भी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सबके हृदय में हूँ। बस मुझे रावण के हृदय से बाहर आना है और वो मृत्यु का शिकार हो जाएगा। I have to just come out of his heart and he is no more. I don't need all these things. But to perform the Leela, to set an example, आदर्श एक एक उदाहरण स्थापन करने के लिए मैं लंका जाने वाला हूं और युद्ध करने वाला हूं। और आप सभी ने सेवा का मौका मांगा था, इसीलिए आपको सेतु बनाने का मौका दे रहा हूं और मेरे साथ युद्ध करने के लिए मैं आप सबको लेके जा रहा हूं। सो दिस इज द सीक्रेट। सो कृष्णा डजंट रिक्वायर एनीवन, ही कैन किल एवरीबॉडी जस्ट बाय संकल्प। केवल संकल्प मात्र से सारे राक्षसों का संहार होगा। लेकिन लीला का प्रदर्शन भी तो करना है, भक्तों को भी मौका देना है लीला में भाग लेने के लिए। इसी कारण वो आते हैं और अपनी भक्तों से भी सेवा कराते हैं कि से बेहतर है बोलना कि भक्त सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो उनको अनुमति देते हैं। तो द वर्ड हियर यूज्ड इज तत्प्रियार्थम। तो एक शब्द है जिसका नाम है तत्प्रियार्थम। ये बखूबी देवताओं का और भक्तों का पोजीशन को दर्शाता है। दिस वेरी क्लियरली इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द देवताज एंड ऑल द डिवोटीज। व्हाट इज दैट? व्हिच मीन्स द डेमिगॉड शुड अपीयर ऑन अर्थ इन ऑर्डर टू प्लीज द लॉर्ड। भगवान की संतुष्टि के लिए सारे देवताओं को भी आना है इस धरा भूमि में और लीला में भाग लेना है। In other words, any living entity who lives only to satisfy the Lord is a demigod. तो जो भी भगवान विष्णु या कृष्णा का संतुष्टि के लिए जीते हैं वो देवता हैं। देवता कौन है? जो भगवान की संतुष्टि के लिए जीते हैं और कार्य करते हैं। डिवोटीज आर दोज पीपल हु लिव एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। So that is the definition of a devotee, the one who lives and acts for the pleasure of the Lord. भगवान की संतुष्टि के लिए जीते हैं और सारे कार्य करते हैं। So अभी भी देवता भी वही कर रहे, तत्प्रियार्थम। In other words, any living, the demigods were further informed that Ananta, the plenary portion of Lord Krishna, who is maintaining the universal planets by extending his millions of hoods, would also appear on earth before Lord Krishna's appearance. तो उनको संदेश ये भी मिला था कि भगवान कृष्णा स्वयं आने से पहले उनसे पहले अवतरण लेने वाले हैं अनंत देव। तो पिछले अवतार में, राम जी के अवतार में पहले राम विष्णु आए थे, फिर उनके बाद अनंत शेष उनके छोटा भाई बन के लक्ष्मण के रूप में आए थे। इस बार कुछ कारणवश, उसके लिए भी एक कहानी है, कहीं और कभी और डिस्कस करेंगे। अनंत देव चाहते थे कि इस बार इस अवतार में वो बड़ा भाई बने, दाऊ बने। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनको अनुमति दे दिया, ठीक है आप मेरे बड़े भाई बन जाइए इस बार। पिछले जन्म में आप छोटे भाई थे, इस बार आप बड़े भाई बन जाइए। सो he was allowed and to come before him as the seventh avatara, and then the eighth avatara was Krishna himself coming and playing his role. So they were also informed that the external potency of Vishnu, Maya, with whom all conditioned souls are enamored, would also appear by the order of the Supreme Lord just to execute his purpose. तो इसके साथ उनके सारे शक्तियां भी आने वाले थे। All the energies of Vishnu, Krishna would also be coming and taking part in the Leela, and Maya Devi, जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, वो भी आने वाली थी और भगवान की इस लीला में भाग लेने वाली थी और उनका सेवा करने वाली थी। After instructing and pacifying all demigods as well as Bhumi with sweet words, Lord Brahma, the father of all Prajapatis, progenitors of the universal population, departed for his own abode, the highest material planet called Brahmaloka. तो
सारे देवताओं को सांत्वना देते हुए, भूमि देवी को सांत्वना देते हुए, उसके बाद सारे देवता अपने अपनी अ, निवास में चले गए। भूमि देवी अपने निवास में चली गई। वर्मा जी भी अपने निवास जो सत्यलोक में है, इसी विश्व में, वहां पे वो चले गए। The leader of the Yadu dynasty, King Shurasena, was ruling over the country known as Mathura. तो ये सब हो गया। ब्रह्मा जी अभी अपने निवास में प्रस्थान कर चुके हैं। सब लोग they're all waiting for the indication that they should now they can now go and take birth in different families of Yadu dynasty and all over the universe, where Lord would perform his Leela and they would take birth in pious families. तो विश्व के अनेक अनेक जगह वो जाके पुण्यशाली कुटुंबों में अवतार लेने वाले वाले थे देवता, और कुछ प्रमुख देवता यदु वंश में अवतार लेने वाले थे अपने पत्नियों के साथ। तो वो एक संकेत के लिए अभी वेट कर रहे थे। तो उस समय धरती पे द लीडर ऑफ यदु डायनेस्टी, तो यदु कुल का नायक किंग शूरसेना, राजा शूरसेना, वॉज रूलिंग ओवर द कंट्री नोन एज मथुरा। मथुरा नाम के राष्ट्र का शासन कर रहे थे। वेर इन लाइज द सिटी ऑफ मथुरा, उस राष्ट्र में एक शहर था जिसका नाम मथुरा था। एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट नोन एज शूरसेना, जिला था शूरसेना जिला, जो शूरसेना राजा के ऊपर नामांकित हुआ था, which was named after him. On the account of the rule of King Shurasena, Mathura became the capital of all the kings of Yadus. तो शूरसेना राजा की वजह से मथुरा सारे यदुकुल के राजाओं का राजधानी बन गया था। मथुरा was also made the capital of the kings of Yadu dynasty because, और मथुरा को ही क्यों चुना यदुकुल ने अपना मतलब राजधानी बनाने के लिए? Because Yadus were a very pious family and they knew that Mathura is the place where Lord Shri Krishna lives eternally. सनातन रूप से, सनातन काल से जहाँ कृष्णा शाश्वत रूप में निवास करते हैं, उस जगह का नाम है मथुरा, मथुरा मंडल, ब्रजमंडल। सो जस्ट एज ही ऑल्सो लिव्स इन द्वारका, जैसे कि द्वारका धाम में भी शाश्वत रूप में वो रहते हैं, मथुरा धाम में भी वो शाश्वत रूप पे, वो शाश्वत समय के लिए वो रहते हैं। सो वंस अपॉन ए टाइम, अब वृत्तांत आता है वसुदेव और देवकी का शादी का वृत्तांत हो चुका है, और देवकी को अभी अपने पति के घर जाना है। तो संदर्भ ये है। सो दिस द सर्कमस्टेंस वेयर Vasudeva has married Devaki and his sisters, and they are now on their way back to Vasudeva's house, because the tradition is the girl goes to the husband's house and lives with the husband and his family, क्योंकि नियम यही था, यही है आज भी कि जो लड़की है शादी के बाद वो अपने पति के घर जाएगी और पति के परिवार के साथ वो रहना प्रारंभ करेगी। सो वंस अपॉन ए टाइम वसुदेवा, द सन ऑफ शूरसेना, जस्ट आफ्टर मैरिंग देवकी, was going home on his chariot with his newly wedded wife. तो एक समय था जब वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ रथ के ऊपर बैठ के, नवविवाहित पत्नी देवकी के साथ रथ के ऊपर बैठ के अपने निवास के ओर, शहर के ओर वो प्रस्थान करने लगे। वसुदेव जी कौन है? शूरसेना राजा का पुत्र, इज द सन ऑफ शूरसेना। The father of Devaki, known as Devaka, had contributed a sufficient dowry because he was very affectionate towards his daughter. तो उस समय भी दहेज का प्रस्ताव, दहेज का प्रथा था, लेकिन आजकल की माफिक नहीं। नॉट लाइक टुडे, डाउरी सिस्टम वाज देयर in the time of Devaka, Devaki, and Vasudeva also, but it was not like how it is followed today. So why Devaka gave dowry? Because he loved his daughter very much. क्योंकि वो अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे, पुत्री से।
तो उसकी सुख के लिए उसने अनेक अनेक उपहार दिया. It was not a burden for him. It was not forced upon him. He gave it. Whatever resources he had, through his resources, he gave. So, तो क्या क्या दिया था उन्होंने? He had contributed hundreds of chariots completely decorated with gold equipment. हजारों हजारों रथ जो स्वर्ण से सुसज्जित था. तो वैसे रथ, हजारों रथ उन्होंने उपहार के रूप में वसुदेव और देवकी को दिया. वैसे भी वो उपहार देवकी के लिए है. जो दहेज है वो पुत्री के लिए दिया जाता है ताकि उसका जीवन मतलब सुहाल रहे. तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल. इट वॉज नॉट गिवन टू द दामाद. इट वॉज नॉट गिवन टू द सन इन लॉ. इट was given to the putri, the vadu. It was given by the father for her comfort. So thousands of chariots which were decorated with gold. ये एक तरफ. फिर at that time, Kamsa, the son of Ugrasena, in order to please his sister Devaki, had voluntarily taken the reins of the horses of Vasudeva's chariot and was driving. तो देवकी जो कंसा के बहुत ही प्रिय सिस्टर थी, तो बहन थी कंसा के, cousin sister we can say, because Kamsa was the son of उग्रसेना. उग्रसेना के पुत्र थे. और देवकी किसका पुत्री थी? देवकी का. सो देवर कजिन ब्रदर एंड सिस्टर. यूज्ड टू लव देवकी अ लॉट. देवकी से बहुत प्रेम करते थे कंसा. तो स्वयं वो उनके रथ के ऊपर बैठ गए सारथी बन के, हाँक के. तो ये प्रेम का संकेत है कि मैं आऊंगा आपके साथ सारथी बन के और आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा. सो तो अपने बहन के साथ वो उसी रथ में सारथी बन के जा रहे थे. According to the custom of Vedic civilization, when a girl is married, the brother takes the sister and brother-in-law to their home. तो ये प्रथा थी कि बहन को और बहन की पति को ले जाते बहन की भैया तो उनके घर तक, तो वहां तक, ससुराल तक छोड़ने के लिए. बिकॉज क्यों ऐसा प्रथा था? बिकॉज द न्यूली मैरिड गर्ल में फील टू मच सेपरेशन फ्रॉम हर फादर्स फैमिली. तो सडनली अगर अभी कोई नहीं है, विवाह हो गया और वो अकेले जा रही है, तो वधु को थोड़ा हिचकिचाहट हो सकता है. इसीलिए some people from the family would go, especially the brother would go and leave the sister to her in-laws house for the first time. So the full dowry contributed by Devaka. अब प्रस्ताव आता है देवका ने देवकी को क्या क्या भेंट दिया. पहले तो हजारों हजारों रथ जो स्वर्ण से सुसज्जित था. फिर 400 elephants fully decorated with golden garlands. तो 400 हाथी जो स्वर्ण माला से सुशोभित था. और 15,000 डेकोरेटेड हॉर्सेस, सुसज्जित घोड़े कितने? 15,000. और 1,800 चैरियट्स, 1,800 रथ, सुसज्जित रथ, ये सब उन्होंने दिया. He also arranged for 200 beautiful girls to follow his daughter. और पुत्री के साथ जाने के लिए देवक ने 200 सुंदर उनकी सहेलियां को भी साथ में उन्होंने भेज दिया. तो why was this done? The Kshatriya system of marriage, still current in India, dictates that when a Kshatriya is married, a few dozen of the bride's young girlfriends, in addition to the bride, go to the house of the king. तो ये एक क्षत्रिय परंपरा है कि वधु के साथ उनकी अनेक सहेलियां भी जाएंगी उनके साथ. और
उनके उसकी ससुराल तक। द फॉलोअर्स ऑफ द किंग द क्वीन आर कॉल्ड मेड सर्वेंट्स। तो उनकी दासी बन के वो जा रही थी। बट एक्चुअली दे एक्ट एज फ्रेंड्स ऑफ द क्वीन। लेकिन अ, असल रूप से वो उनकी सखी, वो उनके सखी का रोल निभाने वाले थे। So that is how the Kshatriya custom is. This practice is prevalent from time immemorial, traceable at least to the time of advent of Krishna. तो ये परंपरा थी अपने क्षत्रिय वंश में, और कम से कम कृष्णा के आने के समय तक तो यही कस्टम था। तो तो कृष्णा का आने के समय मतलब 5,000 साल तक पूर्व तक तो यही कस्टम था। तो आगे, so Vasudeva brought home another 200 beautiful girls, another with along with his wife देवकी। तो देवकी के साथ 200 और सुंदर कन्याएं वसुदेव के साथ और देवकी के साथ उनके घर के ओर चलने लगे। While the bride and bridegroom were passing along the chariot, there were different kinds of on the chariot. There were different kinds of musical instruments playing to indicate the auspicious movement. तो जब वधु और वर वसुदेव देवकी जा रहे थे रथ के ऊपर जिसको हाँक रहे थे कंसा, तो अनेक अनेक मंगल वाद्य बजा रहे थे। तो वो सुनते सुनते वो जा रहे थे। तो इस समय क्या हुआ? इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग, तो तो they were listening to these auspicious sounds, and they were going. There were conch shells, bugles, drums, kettle drums combined together. They were vibrating a nice concert. एक ऑर्केस्ट्रा की तरह तालमेल के साथ दो वाद्य जो थे, अनेक अनेक वाद्य नगाड़ा सब बजा के साथ में जा रहे थे वधु और वर के साथ जो रथ पे बैठे थे। The procession was passing very pleasingly. सब आनंद में थे, सब लोग खुशियां मना रहे थे। And Kamsa was driving the chariot. Kamsa रथ को चला रहा था सारथी बन के। And suddenly there was a miraculous sound vibrated from the sky. तो तत्क्षण एक आवाज सुनाई दिया आकाश के मार्ग से, which especially announced to Kamsa। और ये कंसा कंसा को उद्देशित करते हुए उसने बात किया, आकाशवाणी हुआ। तो आकाशवाणी से क्या क्या सुना कंसा ने? कंसा, सच ए फूल, हे कंस, तो कैसा मूर्ख है। यू आर ड्राइविंग द चैरियट ऑफ योर सिस्टर एंड योर ब्रदर इन लॉ। आप अपनी बहन की और आपके ब्रदर इन लॉ के रथ को स्वयं चला के लेके जा रहे हो, लेकिन डू यू नो दैट द एट चाइल्ड ऑफ द सिस्टर विल किल यू। क्या आप जानते हो कि आपकी ये प्यारी बहन की आठवीं संतान आपकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। सो डू यू नो दैट दिस सिस्टर्स एट सन एट चाइल्ड विल किल यू। So now Kamsa has heard this. तो कंसा देवकी से अपार प्रेम करता है, प्यार करता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? So Kamsa loves his sister abundantly. Now after hearing this Akashvani, what has happened? What will happen? Kamsa was the son of Ugrasena of Bhoja dynasty. उग्रसेन के पुत्र थे कंस। भोजा कुल में उनका जन्म हुआ था। It is said that the Kamsa was the most demoniac of all the Bhoja dynasty kings. सारे भोज कुल में सबसे असुरिक स्वभाव का राजा थे कंस। मनुष्य थे कंस, असुर स्वभाव सबसे ज्यादा किसमें था? भोजा के कुल में, कंस के अंदर। तो वो प्रवृत्ति अब बाहर आने वाला है। Immediately after hearing the prophecy from the sky, he caught hold of Devaki's hair and was just about to kill her with a sword. आकाशवाणी सुनते ही देवकी का केश को पकड़ के तो वो अपना तलवार को उठा के उसका सर को अलग करने वाले थे, काटने वाले थे। तो तुरंत साथ में कौन बैठे हैं? वसुदेव, जो देवकी के नए पति हैं। तो नवविवाहित पति है। हाँ, तो
Vasudeva now sprung into action. What does Vasudeva do? Vasudeva was astonished at Kamsa's behavior. तो वसुदेव को आश्चर्य लग रहा था कि कंस ऐसा कैसे मतलब कर रहा है, इतना प्यार करता है बहन से और अब उसको मारने वाला है। तो एंड इन ऑर्डर टू पेसिफाई द क्रूअल शेमलेस ब्रदर इन लॉ ही बिगैन टू स्पीक एज फॉलोज। तो उस कंस को शांत करने के लिए अब वसुदेव बात करने लगे, संवाद करने लगे। तो क्यों करने लगे? वसुदेव को कंस को शांत करने के लिए। तो तो कैसे बात कर रहे हैं? तर्क से और प्रमाण से बात कर रहे हैं, विद ग्रेट रीजन एंड एविडेंस। वसुदेव इज इंटेलिजेंटली नाउ स्पीकिंग, बिकॉज अब अपाय की स्थिति में है, तो उपाय के साथ उसको निभाना है, उससे बाहर निकलना है। अपने ही पत्नी अभी अपाय की स्थिति में है, तो उसको उस स्थिति में निकाल स्थिति से निकालना है। He has to pull out of danger his newly married wife Devaki. So he uses dialogue, proof, evidence, and various types of strictures. What is that? Reasons. My dear brother-in-law Kamsa, hey Kats, क्या कर रहे हो आप? You are the most famous king of Bhoja dynasty. तो आप भोजा के भोजा कुल के सबसे प्रसिद्ध राजा हो, और आप ये क्या कर रहे हो? So he's trying to tell him that he's not doing a good thing. तो आगे क्या बोल रहे हैं? एंड पीपल नो दैट यू आर द ग्रेटेस्ट वॉरियर एंड अ वेलिएंट किंग। सब जानते हो आप कितना शूरवीर हो राजा, कितना शूरवीर राजा हो आप, कितना महान राजा हो, सब लोग जानते हैं। हाउ इज इट दैट यू आर सो इन्फ्यूरिएटेड दैट यू आर प्रिपेयर टू किल अ वुमन? तो आप इतना कुपित कैसे हो गए कि अब आप इतना बलशाली राजा, इतना प्रसिद्ध राजा कहलाने के बाद एक नारी की वध करने जा रहे हैं आप? आपको शोभा नहीं देता है, इज नॉट वर्दी एक्शन फॉर यू। देन ही सेज हु इज योर ओन सिस्टर? और वो नारी भी कौन सी नारी? आपकी ही बहन, प्यारी बहन, उसका वध जान करने जा रहे हो। और फर्दर ही एड्स एट द ऑस्पिशियस टाइम ऑफ आवर मैरिज, अभी अभी विवाहित होके वो निकल रही है और इस समय आप उनको मतलब मार रहे हो। क्या हो गया आपका शौर्य का, आपका कीर्ति का क्या होगा? वो दर्शाना चाहते हैं कंस को, बिकॉज समहाउ ही हैज टू स्टॉप कंसा। वैसे तैसे उनको कंस को रोकना है। तो फिर वो तर्क लेके आते हैं, व्हाई शुड यू बी सो मच अफ्रेड ऑफ डेथ? मृत्यु से इतना क्यों डरना है आपको, भय क्यों है आपको? डेथ इज ऑलरेडी बॉर्न अलोंग विथ योर बर्थ। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, जन्म के समय ही मृत्यु भी तैर हो गया है, which is very correct. See, very logically, Vasudeva is speaking to Kamsa. From the very day you took your birth, you begin to die. जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से आपका मरण भी प्रारंभ हो गया। अब मृत्यु की ओर जा रहे हो, क्योंकि हमारी आयु सीमित है। तो डे वन से जब हमारा जन्म हुआ तब हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। सपोज यूर 25 years old, वो उदाहरण भी दे रहा है। मान लेंगे कि आप 25 साल के हो, दैट मीन्स यू ऑलरेडी डाइड 25 years। इसका मतलब है आप 25 साल आपका मतलब मृत्यु की ओर आपका प्रस्थान आप कर चुके हो, मृत्यु की ओर आप जा चुके हो। एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड यूर डाइंग, हर पल हर समय हम मर रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। वाई देन यू शुड बी सो मच अफ्रेड ऑफ डेथ? तो आपको मृत्यु के प्रति इतना भय क्यों होना चाहिए? मरना तो है ही, तो क्यों भय है, क्यों भय बीत हो रहे हैं आप? फाइनल डेथ इज इनएविटेबल। तो अंत में मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। यू मे डाई आइदर टुडे और इन 100 years। आप या तो आज मर सकते हो या 100 साल के बाद, बट यू कैनॉट अवॉइड डेथ। लेकिन आप मृत्यु को टाल नहीं सकते, मृत्यु से आप बच नहीं सकते। वाई शुड यू बी सो मच अफ्रेड? तो क्यों आप भयभीत हो? तो फर्स्ट इज ट्राइंग टू टेल हिम व्हाई आर यू सो अफ्रेड, यू शुड नॉट बी अफ्रेड।
क्यों आप इतने भयभीत हो? आप इतना महान राजा हो, इतना इतना शूर हो, वीर हो, भय पड़ रहे, भय हो रहा है आपको आपकी मृत्यु के ऊपर? ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली डेथ मीन्स एनिहिलेशन ऑफ द प्रेजेंट बॉडी। मृत्यु का मतलब क्या है? ये शरीर मिट जाएगा। As soon as the present body stops functioning and mixes with the five elements of metal nature, the living entity within the body accepts another body. तो मृत्यु के बाद इस शरीर के छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर को अपना लेता है। सो तो और इस देह का सारे जो पंचभूत हैं वो नैसर्ग में मतलब मटेरियल नेचर में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, और ये जीव अलग एक और देह को अपनाता है। सो अब तो और कौन सा देह कैसा मिलता है? अकॉर्डिंग टू इज प्रेजेंट एक्शंस एंड रिएक्शंस। इस जन्म में जैसे भी उन्होंने कार्य किया, कर्तव्य किया, कर्म किया, उसके अनुसार उसको एक देह मिलने वाला है। फिर इट इज जस्ट लाइक व्हेन अ मैन वॉक्स ऑन द स्ट्रीट, ही पुट्स फॉरवर्ड हिज फुट, एंड व्हेन ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज फुट इज सिचुएटेड ऑन द साउंड ग्राउंड, ही लिफ्ट द अदर फुट। तो दूसरा एग्जाम्पल अभी देने वाले वसुदेव। जैसे कि राह चलते हुआ कोई पहले एक कदम रखता है, तो वो कदम जब उसको लगता है कि हाँ अभी वो धरती पे है, स्टेबल है, तो वो पिछला वाला पैर को उठाता है। तो फिर इन दिस वे वन आफ्टर अनदर द बॉडी इज चेंज एंड द सोल ट्रांसमाइग्रेट। तो जैसे कि एक के बाद एक हम पाद लेके जा रहे हैं, वैसे देह भी, ये आत्मा भी अनेक अनेक देहों को अपनाता है। और द सोल ट्रांसमाइग्रेट, तो देहांतर प्राप्ति आत्मा का होता है। सी हाउ द प्लांट वर्म्स चेंज फ्रॉम वन ट्विग टू अनदर सो केयरफुली। तो जो वहां पे वर्म है, जो उस पेड़ के ऊपर है, वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक कैसे जा रही है देखो। ठीक वैसे ही हम भी एक देह से दूसरे देह में जाने वाले हैं। सो वेरी क्लेवरली Kamsa is being explained these things. So similarly, the living entity changes his body as soon as the higher authorities decide on his next body. तो वो बता रहे कर्म के अनुसार और दैव नेत्रेणा, तो के अनुसार दूसरा देह मिलता है, और आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर, जीव एक शरीर से दूसरा शरीर तक जाता है। So as long as living entity is conditioned within this material world, you must take material bodies one after another. जब तक जीव बद्ध जीवी है इस भौतिक संसार में, उसको रहना है और अनेक अनेक देह को प्राप्त करने वाला है। तो his next particular body is offered by laws of nature. नैसर्गिक नियमों के अनुसार, law of karma, law of nature, by that he is going to get his next body. And according to the law of nature, how does it decide? According to actions and reactions of this life, कर्मों के अनुसार। तो कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। तो जंतुर्देह उपपत्तये, जंतु का देह मिल रहा है, उपपत्तये मैन्युफैक्चर हो रहा है, अलग देह नेक्स्ट देह मैन्युफैक्चर हो रहा है। कैसे? कर्मणा, by his own actions. And who is watching this as witness? दैव नेत्रेण। तो भगवान की देख रेख में ये सब हो रहा है। So under the law, superintendence of the Supreme Lord, all these things are happening. तो तो वसुदेव आगे बोलते हैं, हरे कृष्ण। This body is exactly like one of the bodies which we always see in dreams. ये देह उस देह की तरह है जहाँ जब हम स्वप्न देखते हैं, अलग अलग देहों का हम हमें आभास होता है, स्वप्न में हमें दिखता है कि हमने दूसरे दूसरे देह को अपना लिया है। सो ड्यूरिंग आवर ड्रीम ऑफ स्लीप वी क्रिएट सो मेनी बॉडीज अकॉर्डिंग टू मेंटल क्रिएशन। और अपने मन के ऊहापोह से हम अनेक अनेक देह का भी सृष्टि कर देते हैं, अनेक अनेक पात्र भी हमारे स्वप्न में हम देखते हैं। वी हैव सीन गोल्ड, वी हैव सीन अ माउंटेन। जैसे कि हमने सोना को देखा है और हमने पर्वत को देखा है।
So in a dream we can see golden mountain by combining the two ideas. तो स्वप्न में सोना और पर्वत जो हमने देखा है वो दोनों कंबाइन होके सोने का पर्वत का आभास हमें हो सकता है. So we know gold, we know mountain, and in the dream, the subconscious mind can put it together and make us see a golden mountain. So sometimes in dreams we see that we have a body which is flying in the sky. कभी कभी हम सपने में देखते हैं कि हम पंछी की तरह उड़ रहे हैं आकाश में. फिर एंड एट दैट टाइम वी कंप्लीटली फॉरगेट अवर प्रेजेंट बॉडी. उस समय हम अपना जो इस देह है उसको भूल ही जाते हैं. सिमिलरली दीज बॉडीज आर चेंजिंग व्हेन. तो ठीक वैसे ही ये देह भी बदल रहा है. व्हेन यू हैव वन बॉडी यू फॉरगेट द पास्ट बॉडी. अब ये देह है तो पिछले जन्म में कौन सा देह था हमें, हम में से किसी को भी पता नहीं है. तो नन ऑफ अस नो इट. ड्यूरिंग ए ड्रीम वी मे मेक कांटेक्ट विद सो मेनी न्यू काइंड्स ऑफ बॉडीज. तो स्वप्नों में हम अनेक अनेक देहों का अ, मतलब हमको हमें हमें दिखाई देगा. स्वप्नों में अलग अलग देह हमें दिखाई देगा. बट व्हेन वी वर अवेक वी फॉरगेट देम ऑल. और जब हम जागृत स्थिति में आएंगे तो सारा पूरा स्वप्न जो है वो भूल जाते हैं. तत्काल तुरंत कोई पूछ लेता है क्या होगा क्या हुआ, तब हम बोल सकते हैं. लेकिन कुछ समय के बाद सपने में हमने क्या क्या देखा, स्वप्न में हमने क्या क्या देखा, सब भूल जाते हैं. इज इट नॉट? इट हैज आल्सो हैपेंड टू me definitely and many of you also, that you have just dreamed and you got up and for a few minutes you remember it and then you sleep over it. Next day you don't remember. Yeah, you vaguely remember that you had a dream something like, but exact details you don't remember. So Vasudeva is putting that as an example. Further, so at the present moment we do not recollect our past bodies. तो इस समय क्या आपको पता है आपका पिछला जन्म कैसा था, कौन सा देह में थे आप, मनुष्य देह में थे, प्राणी के देह में थे, नहीं पता है. तो इस टेलिंग कम्स वसुदेवा कि देखिए ऐसा है. द नेचर ऑफ माइंड इज फ्लिकरिंग. मन की बात मत सुनिए, मन चंचल है. तो देखो भगवत गीता में भी कृष्णा बोलते हैं बाद में, भगवत गीता जब अर्जुन को बता रहे चंचलम ही मना कृष्णा. तो जो भगवत गीता में आने वाला है वृत्तांत उपदेश सब वसुदेव भी कृष्ण से पहले कंस को, मतलब जब कृष्णा अर्जुन को देने वाले बाद में कुरुक्षेत्र रणभूमि में, उससे पहले वसुदेव कंस को वही ज्ञान दे रहे हैं. मतलब ये है कि कृष्णा ने जो ज्ञान दिया भगवत गीता में अर्जुन को वेद ग्रंथ के आधारित है. और कृष्णा ने खुद बोला है, कृष्णा himself tells this same knowledge I spoke to sun god Vivaswan many millions of years ago. तो लाखों लाखों साल पहले हे अर्जुन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने सूर्य देव को विवस्वान को बताया था लाखों लाखों साल पहले. विवस्वान मनवे तो विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को बोला ये सब. मनव मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत. और मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बोला. ऐसे परंपरा में वो ज्ञान आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है. तो लेकिन कुछ समय के बाद वो ज्ञान लुप्त हो गया, नष्ट हो गया. इसीलिए मैं आपको हे अर्जुन अब वही ज्ञान देने वाला हूं जिस ज्ञान को हम सब जानते हैं भगवत गीता के नाम. तो ठीक उससे पहले वसुदेव ने असुर कंस को भी यही ज्ञान दिया था संक्षिप्त में. तो उपाय के और ताकि वो अपाय की स्थिति से निकल सके और देवकी को बचा सके. सो वसुदेव जी बता रहे द नेचर ऑफ माइंड इज फ्लिकरिंग. चंचल, मन चंचल है. समटाइम्स इट एक्सेप्ट समथिंग एंड इमीडिएटली इट रिजेक्ट्स द सेम थिंग. संकल्प अनुकल्प. एक समय मन बोलता है हाँ ये ठीक है, दूसरा समय उसी दूसरे तत्क्षण वो बोल देता है नहीं ये ठीक नहीं है. तो संकल्प विकल्प चंचला, मन चंचल है. एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ माइंड. तो ये मतलब संकल्प और विकल्प मनो स्थिति है सबका. तो और माइंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द फाइव ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. मन
इंद्रियों के संपर्क में है। तो फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, साउंड, टच। तो रूप और स्वाद, घ्राण, स्मेल, शब्द और छूने का जो एहसास है, तो इन इंद्रियों के संपर्क में है मन। In its speculative way, the mind comes in touch with the objects of sense gratification. तो मन अपना कहानी बना के इंद्रियों के संपर्क में रहता है। इसलिए बोलते हैं मन गढ़त कहानियां। मन कुछ भी कहानी बना सकता है। And when the living entity desires a particular type of body, he gets it. और जब देह एक जीव एक देह का तो मतलब याचन करता है, तो उसको वैसे देह मिल जाता है, क्योंकि याचन मतलब अपने कर्मों से उसकी ओर वो बढ़ रहा है। देयरफॉर द बॉडी इज एन ऑफरिंग बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। तो न- नैसर्गिक शक्तियां भी उस जीव को उस देह का प्रदान कर रहे हैं। देखो तुम्हारा कर्म ये है, तुम्हारी ये सारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी इच्छा अगर पूर्ण करना है तो आपको ऐसे देह से पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल विथ दिस टाइप ऑफ बॉडी। यू आर ए ह्यूमन बीइंग नाउ, यू आर डूइंग एक्ट्स लाइक अ पिग, dirty acts. So in the next life, if you have to eat stool, तो इस मनुष्य, अगर हम सोचेंगे स्टूल के बारे में, हमें कितना घृणा लगता है। वी फील सो ऑकवर्ड, बट द सेम स्टूल इज बीइंग ईटन बाय पिग्स। तो ऐसे हमने कार्य किया जिसमें हमें अगले जन्म में मल का पान करना है, तो मल का सेवन करना है, तो अब हम मनुष्य देह में नहीं रह सकते। उसके लिए सुअर का देह चाहिए, क्योंकि सुअर हंसी खुशी उस मल को खा लेता है। तो सुअर सुअर तो गटर में ही पड़ा रहता है, उसको वहीं पे आनंद लगता है। तो ऐसा देह, ऐसा मन वाला, ऐसे मनोस्थिति वाला देह मिलने से ही वो सुअर का जो कार्य है वो कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू karma, according to actions, according to the reaction, the body is given. So the living entity accepts a body, comes out again into the material world to enjoy or suffer according to the construction of that body. तो अब दूसरा देह मिल जाएगा। जैसे कि कुत्ते का शरीर मिल गया, तो कुत्ता या तो पेट डॉग हो सकता है, या जो स्ट्रीट में रहने वाला डॉग है, कैन बी द स्ट्रीट डॉग, इट कैन बी अ पेट डॉग, अगेन बेस्ड ऑन द what circumstances that dog has to undergo according to the previous karmas as a human being. So you see some dogs are being so nicely taken care of. Pet dogs, they stay in AC big bungalows. They're given nice dog food, and there are street dogs जिसको पत्थर से मारते हैं लोग, और उसको वो खाने का मोहताज है, खाने को नहीं मिल रहा है वो उसको। पर दूसरी तरह एक पेट डॉग है जिसको चुन चुन के पौष्टिक आहार, चुन चुन के पैकेट वाला दे रहा है मालिक। सो unless we have a particular type of body, we cannot enjoy or suffer according to our mental proclivities inherited from previous life. तो जब तक हमारे पास कोई देह नहीं है, हम ना तो सुख भोग सकते हैं, ना दुख को भोग सकते हैं। तो सुख और दुख भोगने के लिए शरीर का होना अत्यावश्यक है। सो एंड अकॉर्डिंग टू अवर मेंटल प्रोक्लिविटीज, हमारे जीवन में खुशी और दुख हमारे मन स्थिति के अनुसार आता है और हमारे कर्मों के अनुसार आता है। मन स्थिति भी हमारा कैसे, कहाँ से आ रहा है, हमारे पिछले जन्म से होके आ रहा है। तो वही जो सोच है इस जन्म में भी आ गए। The particular type of body is actually offered to us according to our mental condition at the time of death. तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, मृत्यु के समय अंत में जिस चीज के बारे में मनुष्य सोचता है, वैसे ही देह उसको अगले जन्म में मिलता है। सो वी आर टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर थिंकिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। तो क्योंकि मृत्यु के अंतिम समय में जो सोच हम रखते हैं, वैसे ही देह हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस इन दिस
current life, as we are approaching death, before death, we must practice chanting the holy names of the Lord. Because when we remember Krishna at the time of death, then we go back to Krishna. अगर हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे मृत्यु के समय, तो हम कृष्ण लोक वापस जा सकते हैं, वरना जैसे सोच वैसे देह मिलेगा और इस संसार में हमें वापस आना पड़ेगा। तो आज के लिए हम यही विराम देते हैं। तो we were able to take a good and long session. And as Janmashtami is approaching, the whole idea is we want to welcome Krishna. हम कृष्णा का स्वागत करना चाहते हैं। तो सितंबर 4 को जन्माष्टमी है। तो आज से लेके सितंबर 4 तक हफ्ते में 2 या 3 दिन हम इस स्वागतम कृष्णा की श्रृंखला के माध्यम से कृष्ण का लीलाओं के श्रवण हम करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के कृष्णा द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड पुस्तक के आधारित। सो लेट अस ऑल वेलकम कृष्णा is coming on Janmashtami on September 4th, and let us all welcome him in a manner that is pleasing to him. In Kali Yuga, the way to please Krishna is to always hear to his pastimes, Shravana, and to chant his holy names, especially the Hare Krishna Mahamantra. So, we will now all chant one round of Hare Krishna Mahamantra. सो 108 बार हम जपा करेंगे। पहले गोपाल जी का प्रणाम मंत्र करेंगे, तत्पश्चात पंचतत्व प्रणाम मंत्र, एंड देन वी विल चैंट 108 टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र एंड वेलकम कृष्णा ईच डे। ईच टाइम वी मीट नाउ, वी आर गोइंग टू वेलकम कृष्णा इन दिस वे, हियर टू हिज लीला एंड welcome him by chanting in that way, glorifying his holy names. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थोड़ा फास्ट पेस में हम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सो मिलते हैं अगली बार अगले सत्र में। लेट्स ऑल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर joining me in this session. हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण